Again welcomes to you on online platform of SHRI Education Group Bhadra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 3.2. Exercise 3.2 of class 9th. Okay. Our first question is, write the answer of each of the following question. Write the answer of each of the following question. Each of the following question. Okay. First part. What is the name of horizontal and vertical lines? The name of horizontal and vertical lines. Drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. Any point in the Cartesian plane. Okay. So the name of horizontal line is x-axis. Answer होगा the name of horizontal line is x-axis. Line is x-axis and vertical line is y-axis. Okay. ये पैरेलल टू प्लेन होती है और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है. Second is, write what is the name of each part of the plane? What is the each part of plane? Each part of plane. Formed by these two lines. Formed by these two lines. तो वो होगा quadrant. Okay. Each part of the plane. Each part of the plane. Each part of the plane formed by these two lines. Yani it means x-axis and y-axis. These two lines is known as quadrant. Is known as
quadrant. Okay. Third is write the name of the point where these two lines intersect. Write the name of the point where these two lines intersect. These two lines intersect. Origin point O. हो जाएगा intersect. Origin point O होगा. Name of the point is origin. It is denoted by O. Answer. The name of the point where these two lines intersect is origin point. And it is denoted by O. Okay, O for origin point. Then first question is complete. Okay. Now second question. See figure and write the following. Question second. See figure and write the following. Okay. So this is parallel line to plane and this is perpendicular line to plane in figure. Okay, this is x axis minus x, or we can say x dash, y and minus y, or we can say y dash. Intersecting point is O. Okay, यहाँ पे डेटा हैं 1 2 3 4 5 and 6. ये x एक्सिस प्लस x, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये -x, और we can say x dash. Clear? यहाँ पे 0 to 6 1 2 3 4 5 and 6. ये y हो गया प्लस y. ओके, यहाँ पे एंड यहाँ पे राइट. ओके, तो क्वेश्चन तो आपको पता चली गया. यहाँ पे ये मैं इरेज कर देता हूँ. ठीक है. सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन -1 -2
-3 -4 एंड -5 माइनस वाई एक्स हो गया, और ये वाई डैश एक्सिस माइनस वाई एक्सिस एंड माइनस वाई डैश एक्सिस वी कैन से। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट डी, ये डी है 2 की डायरेक्शन में एंड 6 की डायरेक्शन में, ये पॉइंट है डी। ओके, -5 एंड 2, ये -5 की डायरेक्शन में है और 2 की डायरेक्शन में, ये पॉइंट है बी। ओके, -5 एंड -3 इस डायरेक्शन में है पॉइंट एच एंड ई -3 और -5 -3 की डायरेक्शन में और -5 की डायरेक्शन में, ये पॉइंट है ई। ओके, और 2 एंड -4 जी, 2 एंड -4 है, ये पॉइंट है जी। क्लियर, और सी है 5 एंड -5, 5 एंड -5, ये पॉइंट है सी, और एल है 5, ये पॉइंट है एल, और लास्ट पॉइंट है एम हो गया, ये एम पॉइंट है। तो इस फिगर में आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। फर्स्ट है, मैं डायरेक्ट आंसर इधर ही राइट कर दूंगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा, बी पॉइंट सर्च करोगी तो x की वैल्यू है, x के डायरेक्शन में वैल्यू है -5 एंड y की डायरेक्शन में वैल्यू है 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या आएगा, -5 एंड 2। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x राइट की जाएगी, देन वैल्यू ऑफ y। सेकंड इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c, द कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो c पॉइंट सर्च करो, ये 5 एंड -5, तो c के कोऑर्डिनेट 5 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ y। ओके, थर्ड इज, ये आंसर है। ओके, थर्ड इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट, द पॉइंट identified by the coordinate -3 and 5, -3 and -5, ये देखो -3 एंड -5, तो पॉइंट ई होएगा आंसर। कौन है वो पॉइंट ई। ओके, फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड
identified by the coordinate 2n minus 4 2n minus 4 वो क्या आएगा 2n minus 4 फिर 2n minus 4 2n minus 4 पॉइंट G होएगा पॉइंट G फिफ्थ the abscissa of the point D abscissa it means x coordinate the abscissa of the point D it means x coordinate तो वो क्या होगा पॉइंट डी कहाँ पे है सर्च करो एब्सिसा 6 एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो होएगा 6 ये आंसर इक्वल के अंदर राइट कर रहा हूँ मैं द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच ऑर्डिनेट इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच वो क्या होगा एच पॉइंट ये ऑर्डिनेट इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट वो है -3 ओके सेवंथ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल द coordinate of the point L is equal first of all value of 0 वो x राइट की जाएगी y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0 0,5 ओके 8 नंबर the coordinate of the point कौन सा m के कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन x एक्सिस एंड ऑन x एक्सिस वैल्यू y इज इक्वल 0 तो वैल्यू x फर्स्ट ऑफ ऑल राइट की जाएगी -3 है एंड वैल्यू y क्या है 0 ये दोनों का आंसर बिकॉज ऑन y एक्सिस x इज इक्वल 0 on x axis y is equal 0 okay this is our exercise number 3.2 exercise 3.2 is complete okay now exercise 3.3 exercise 3.3 class 9th our first question is in which quadrant or on which axis is the point question first in which quadrant
or on which axis, or on which axis, on which axis do each of the point, do each of the points -2, 4, 3, -1, 3, -1, -1, 0, 1, 2, and -3, and -3, 5 lie. Okay, verify your answer by locating them. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane, by locating them on the Cartesian plane, on the Cartesian plane. Okay. -2 and +4. Answer first. Solution point first. In the point -2 and 4, in the point -2 and 4, abscissa is negative. Abscissa is negative and ordinate is positive. So it lies in second quadrant. So it lies in the second quadrant. क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव होती है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. सेकंड, इन द पॉइंट -1 and 0, abscissa is positive and ordinate +3 and -1, +3 and -1. Abscissa is positive. Abscissa value of x होती है and ordinate is negative. So it lies in the
third fourth quadrant. Okay. Third, -1 and 0. In the point abscissa is negative and ordinate is 0, so it will lie on negative x-axis. In the point -1 and 0, abscissa is negative and ordinate is 0. So it lies on negative x-axis. It lies on negative x-axis. Okay, because on x-axis y is equal to 0. Okay. Fourth, in the point 1 and 2, abscissa is positive abscissa and ordinate both are positive. So it lies in the first quadrant. Okay. Fifth, in the point -3 and -5, abscissa and ordinate both are negative. So it lies in the third quadrant. Okay. अभी locating of the points are shown in figure. वेरिफिकेशन करना है. ओके. तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं. ओके. अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन. फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस एक्स की वैल्यू भी माइनस में अवेलेबल है एंड वाई की वैल्यू भी माइनस में अवेलेबल है. तो माइनस एक्स एक्सिस भी यूज होएगा और प्लस एक्स एक्सिस भी यूज होएगा. ओके. वेरिफिकेशन बाय ग्राफ. जो आंसर दिए हैं वो ग्राफ के हेल्प से. सॉल्यूशन में चल रहा है. सॉल्यूशन वेरिफिकेशन.
तो माइनस एक्स की वैल्यू देखो -2 +3 -1 1 एंड -3. तो सेट द फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओके, दिस इज +x, दिस इज -x, दिस इज +y, दिस इज -y. दिस इज फॉर्मेट ऑफ ग्राफ. ओके, अब लोवेस्ट, व्हाट इज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x? -3 is lowest value of x and +3 is the biggest value of x. First of all scale the set on x axis. और स्केल कैसे सेट करते हैं कि लोवेस्ट वैल्यू आई और बिगेस्ट वैल्यू आई और डिफरेंस शुड बी सेम. ओके, तो 1 1 का डिफरेंस ले लें अपन. -1 -2 -3 +1 +2 +3. ओके, this is scale set. One big box is equal 1 unit. Okay, what is biggest and lowest value of y? Biggest value is 4 and lowest value is -5. तो 1 1 का डिफरेंस ले लें. 1 2 3 एंड 4 बिगेस्ट वैल्यू अवेलेबल होगी. और -5 -1 -2 -3 एंड -4 एंड लास्ट -5. ओके, नाउ ये स्केल की पहले से स्केल ऑन x एक्सिस. 1 1 का डिफरेंस है. 1 big box is equal 1 unit and on y axis 1 1 का इसमें डिफरेंस है. 1 big box is equal 1 unit. तो ग्राफ में बिग बॉक्स होता है उसके इज इक्वल 1 यूनिट है. -2 एंड 4, दिस इज -2 एंड +4. ये पॉइंट होएगा -2 एंड 4. ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था. ठीक है, +3 एंड -1, दिस इज वैल्यू ऑफ +3 एंड -1. तो इस डायरेक्शन में होगा. इसको पॉइंट बी अपन कह सकते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये सेट होते हैं. -1 एंड 0 ये ऑन एक्स एक्सिस होएगा. सी बोल दें इसको. 1 एंड 2 एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 2. ये पॉइंट डी हो गया. ओके, एंड -3 एंड -5 -3 एंड -5. ओके, ये पॉइंट डी हो गया. ओके, और 1 एंड 2 हो गया. इसको ई बोल देंगे अपन. ई. ओके, तो ये पॉइंट क्या है 1 एंड 2. ये पॉइंट है 3 एंड -1 और ये पॉइंट है -2 एंड 4. इसके कोऑर्डिनेट हो गए. -1 एंड 0 कोऑर्डिनेट हो गए. कंप्लीट हो गया टोटल. और ये क्या हो गया -3 एंड -5. क्लियर. Now last question of 3.3. तो ये अपने वेरिफिकेशन भी कर दिया भी जो कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं उससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. Plot the point xy
लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी। प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स x and y, x and y given in the following table, given in the following table on the plane, table on the plane, choosing suitable unit of distance on the axis, choosing suitable unit, suitable units of distance on the of distance on the axis. ओके, ये गिवन है x y -2 and 8, -1 and 7, 0 and 1.25 and 1 and 3 and 3 and -1। ओके, तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन इस टेबल में करेक्शन करेंगे अपन। x y -2 -1 0 1 and 3, 8 7 -1.25 3 and -1। अब यहाँ पे पॉइंट्स ऑन ग्राफ, पॉइंट्स ऑन ग्राफ, पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ओके, ए x की वैल्यू -2 and 8, b क्या होगा -1 and 7, c 0 and -1.25 and d क्या होगा 1 and 3 and e क्या होगा 3 and -1। कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x राइट की जाएगी, देन वैल्यू ऑफ y। ओके, अब x की वैल्यू भी माइनस की है, y की वैल्यू भी माइनस की है, तो अपन -x एक्सिस एंड -y एक्सिस दोनों ऑपरेट करेंगे। ओके, x -x ओरिजिन पॉइंट O, ये थोड़ा सा पहले से अपन कवर कर लें, y and -y। ओके, सेट द स्केल ऑन x एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यू है -2 एंड मैक्सिमम है 3, तो 1 1 का गैप ले ले अपन, -1 -2 और मैक्सिमम है 3। ओके, और इसमें मैक्सिमम है 8 और मिनिमम है -1.25। ओके, यहाँ पे अपन 1.25 ये 50 का गैप कवर करें, 1 यूनिट का ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
8. This is our y axis, -1 and -2. ओके, ए पॉइंट टैग करना है, -2 and 8, ये ए पॉइंट हो गया। ओके, पॉइंट ए हो गया, एंड -1 and 7, ये पॉइंट बी हो गया, -1 and 7, दिस पॉइंट इज बी। ओके, 0 and -1 to -1.25, -1.25 यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1.25 है। d 1 and 3, ये हो गया पॉइंट d, वैल्यू ऑफ x 1 है और वैल्यू ऑफ y का 3 है। 3 and -1, ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू क्या है 1 e। ओके, ये कैपिटल ई कर देते हैं। ओके, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया और स्केल सेट कर देते हैं। स्केल ऑन x एक्सिस इज इक्वल 1 यूनिट एंड on x axis 1 big box is equal 1 big box is equal 1 unit, and on y axis 1 का डिफरेंस है ना, 1 big box is equal 1 unit. So your exercise 3.2 is complete and your chapter नंबर 3 इज़ कंप्लीट। ओके, तो यह आप इनको ग्राफ से समझ सकते हैं, आपको बेसिक भी करवाया और ग्राफ भी आपको अच्छे से समझाया। ओके, थैंक्स।